Hello dear FYBSC, welcome to the another video lecture. So here we are going to see the one more type of cultivation which is involving the fungi. Okay, up till now we have studied the cultivation of bacteria. Okay, we didn't involve any type of the fungi, we didn't involve or studied any type of the actinomycetes, viruses. We only studied the cultivation of different type of bacteria. Now here onwards we are going to see the cultivation of the different types of fungi, the cultivation of actinomycetes, the cultivation of viruses. Okay, so when we studied the cultivation of the different types of bacteria like lithotropic bacteria, like photosynthetic bacteria, like anaerobic bacteria. Okay, now here we are going to see how to cultivate the fungi and what are the mediums which are required for the cultivation of fungi. Okay, so generally when we talk about the fungi, okay, what we know about the fungi is that they are the they may be the unicellular, they may be the multicellular, they may be having the chitin in their cell wall, they are heterotrophic in the mode of nutrition. Okay, they don't synthesize their own food, they can't synthesize their own food, they don't have their own machinery to synthesize food. That's why they either infect the plants or animals, or they either survive using the dead organic matter. Okay, no matter what, they need to be dependent on somebody else for their growth. That's the main characteristics of the fungi. Now the fungi are the heterotrophic organisms, and we can also culture them in the laboratory. Okay, but for the cultivation they don't need any kind of a complex things or the complex conditions. Just like bacteria, जैसे हमने बैक्टीरिया को कल्टिवेट किया था, वैसे ही we can cultivate the fungi also. For the cultivation of the fungi, we need the conditions which are very much similar to the conditions which we require for the cultivation of the bacteria. Okay, like we remember the cultivation of bacteria is carried out at the temperature of the 37 degrees Celsius. Okay, fungi somehow requires the lower temperature as compared to the bacteria for the growth. They require about 30 degrees Celsius or 28 degrees Celsius temperature for their growth. Along with that, pH requirement is also low as compared to the bacteria. Okay, then the one more thing is that they require some kind of the complex molecules for their nutrition. Okay, like keratin. Okay, and the media which we use generally for the growth of fungi is the Sabots agar. We will study the different type of the media that is used for the cultivation of fungi, but one common type of media is the Sabots agar. Okay, and along with that, if we know the fungi can be unicellular, the fungi can be multicellular. If the fungi is unicellular, we call them as a yeast. Okay, yeast or Candida albicans, they are the yeast like fungi. Okay, so the fungi can also be the multicellular, that means they can be mold. Okay, filamentous. सो नाउ जो ईस्ट होती है या फिर जो ईस्ट लाइक बैक्टीरिया होते हैं, जनरली वो जो ग्रो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज ग्रो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. अगर वो मोल्ड्स है या फिर मल्टीसेलुलर है तो वो फिलामेंटस ग्रोथ दिखाते हैं, पूरे मीडिया पे स्प्रेड होके ग्रो होने लगते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फंगाई जो ईस्ट होते हैं और जो मोल्ड्स होते हैं उनमें. नाउ अगर हम डेफिनेशन देखें, हमने ये स्टडी किया था कि कल्चर मीडिया होता क्या है, उसके टाइप्स भी हमने देखे थे, बट अगर हम फिर से उसको रिवाइज करें, like revise it again, then the fungi are the culture media are the substances that provide a medium to grow for the bacteria as well as for any type of the microorganism. Okay, they have something in them, they have some nutritional factors in them, the optimum condition, the optimum pH in them, so that the microorganisms can grow very efficiently on them. Okay, without any hindrance or without any barrier. Now when we talk about the culturing, okay, we need to know what type of the media should be used for the cultivation of the specific type of the bacteria or the specific type of the fungi. Now the media which we generally use for the cultivation, we have already seen that it has been classified based on the consistency into three types. Okay, it may be the solid, it may be the semi solid, or it may be the लिक्विड मीडियम जिसको हम ब्रॉथ कहते हैं. ओके, तो जो सॉलिड मीडिया होता है उसमें भी इंक्लूड अगार. सेमी सॉलिड में जो अगार कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा वी कैन से सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है,
एंड जो लिक्विड मीडिया होता है इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ द अगार इन इट, ओके। सो जो लिक्विड मीडिया होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगाई। नाउ ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है फंगाई की ग्रोथ के लिए, तो उनको लगते हैं कार्बन सोर्सेस, नाइट्रोजन सोर्सेस एज वेल एज विटामिन्स, ओके। क्योंकि वो हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब उनमें ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज करने की एबिलिटी होती है वो नेचुरली नहीं होती है, इसकी वजह से हमें उनको मीडिया में न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स कौन से हो सकते हैं, फिर कार्बन सोर्स हो सकता है, नाइट्रोजन सोर्स हो सकता है एज वेल एज द विटामिन्स। नाउ कार्बन सोर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द ग्रोथ। इट में भी द ग्लूकोज और डेक्सट्रोज, जो बहुत कॉमनली हर मीडिया में आप लोग यूज़ करोगे, दैट इज़ द ग्लूकोज। नाउ फ्रुक्टोज या मैनोज भी हो सकते हैं एज वेल एज इट में बी द सुक्रोज, ओके। दे आल्सो कैन बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फंगाई। नाउ नाइट्रोजन सोर्सेज हो सकते हैं। नाइट्रोजन सोर्सेज कौन से, फिर इट में बी द पेप्टोन, इट में बी द ईस्ट, इट में बी द माल्ट एक्सट्रैक्ट, इट में बी द अमाइनो एसिड्स, अमोनियम एज वेल एज द नाइट्रेट कंपाउंड, जिनमें क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन आपको पता है बैक्टीरिया या फिर फंगा या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, एनर्जी सिंथेसिस करने की जो प्रोसेसेस होती है, वो होने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें, या फिर वी कैन से द बैक्टीरिया रिक्वायर्स व्हाट, द नाइट्रोजन। नाउ द सॉल्ट्स विच आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द फंगाई आर ferrous, then zinc, then magnesium and they are also added, okay। now अगर हमें उनका concentration पता है कि हमने उसमें कितने अमाउंट में exactly salts डाले हैं, then we call it as a synthetic medium। and if we don't know any type of the like हमने अगर इसको complex form में दिया है, we don't know the exact concentration, उसमें कितना कार्बन है, कितना नाइट्रोजन है, कितने salts है, then we called it as a non synthetic media or very kind of a complex media, okay। देन दी फंगाई जो हो सकते हैं उनमें नेचुरली डेफिशिएंसीज होती है विटामिन्स की, मतलब क्या वो खुद विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर पाते, दैट्स वाई हमें उनको प्रोवाइड करना पड़ता है एक्सटर्नली। सो विच टाइप ऑफ विटामिन्स वी नीड टू प्रोवाइड, थायमीन एंड द बायोटीन, ओके। नाउ द मीडिया, विच टाइप ऑफ द मीडिया विच वी आर गोइंग टू यूज और विच वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फॉर द कल्टिवेशन विल गोइंग टू बी अफेक्ट द morphology of the fungi, okay। the morphology, the structure, the color of the fungi colony, okay। so that is the important thing कि हम कौन सा मीडिया यूज़ करने वाले हैं, इसकी बेसिस पे ही हमें जो कॉलोनीज दिखने वाली है, जो फंगाई दिखने वाला है, वो कौन से कलर का होगा, क्या स्ट्रक्चर का होगा, इट विल डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द मीडिया विच वी यूज़। नाउ द वन मोर थिंग इज़ दैट कि मीडिया कौन सा यूज़ किया है, इसके बेसिस पे फंगाई ग्रो होगा भी या नहीं, ये भी चीज़ उस पर डिपेंडेंट है, ओके। फंगाई में अल्सो ग्रो और इट में नॉट ग्रो इज़ अल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द टाइप ऑफ मीडिया वी यूज़। नाउ वी नीड टू अल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स विच दे रिक्वायर। क्या होता है कि कोई फंगाई जो होता है इट requires some kind of the specific nutrients, okay। वो न्यूट्रिएंट्स या वो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स अगर मीडिया में नहीं है तो वहाँ पे कोई भी फंगाई ग्रो नहीं होगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस मीडिया में हमने उसको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं या नहीं, ओके। नाउ जनरली जो मीडिया होते हैं इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स, ओके। जो हमने पहले भी स्टडी किया था, डिफाइंड हो सकते हैं, नॉन डिफाइंड हो सकते हैं। नाउ जनरल टाइप ऑफ मीडिया जो हम फंगाई के कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ मीडिया इज़ द पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, पीडीए मीडिया, ओके। उसको पीडीए मीडिया भी कहा जाता है। नाउ पोटैटो डेक्सट्रोज अगार के नाम में ही क्या है, पोटैटो एंड डेक्सट्रोज, मतलब क्या उस मीडिया में दो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाने वाली है, दैट इज़ द पोटैटो एंड द डेक्सट्रोज, ओके। तो जनरली ये जो मीडिया होता है इसमें हम स्टार्च, जो पोटैटो होता है ऑब्वियस सी बात है वो स्टार्च का सोर्स होता है, ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, तो हम शुगर भी उसके साथ साथ प्रोवाइड करें, कोई कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करें, तो क्या होता है कि ये मीडिया बहुत रिच हो जाता है। इसमें खाने के लिए उस
फंगाई को बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, दैट्स वाई वहाँ पे विगरस ग्रोथ हो जाती है। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो मोल्ड्स होते हैं वो जनरली इतने विगरसली ग्रो हो जाते हैं कि वो स्पोरुलेट हो जाते हैं, ठीक है। देन अलॉन्ग विद दैट पिगमेंट प्रोडक्शन भी इनका होने लगता है इन दिस टाइप ऑफ मीडिया, दैट इज़ ओनली द साइड इफेक्ट ऑफ द PDA मीडिया। तो इसका कॉम्पोजिशन अगर देखें तो इट कंटेन्स द पोटैटोज ऑफ अबाउट 200 ग्राम्स, अगार हो सकता है, देन इट इज़ अबाउट 15 to 20 ग्राम, डेक्सट्रोज इज़ 15 ग्राम्स, डिस्टिल वाटर इज़ अबाउट 1000 ml, ओके। तो 1000 ml हमें मीडिया बनाने के लिए कितना लगता है रिक्वायरमेंट हमने आज देखी। देन अलॉन्ग विद दैट प्रोसीजर, अभी मीडिया बनाना कैसे है, तो एक तो आपको लैब में पोटैटो डेक्सट्रोज अगार का जो है वो डायरेक्टली डब्बा मिल जाएगा, या तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाते कैसे है, फिर पोटैटो लेने हैं, पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट करने, ठीक है। उसके बाद उनको बॉईल करना है अबाउट 1 hour इन द वाटर और द स्टीमर, ओके। उसके बाद वो बॉईल होने के बाद उसकी पेस्ट बनानी है, उसको फिल्टर करना है थ्रू दी मसलिन, ओके। मतलब ये जो आपने पोटैटो है उसको उबाला इन द 500 ml डिस्टिल वाटर, उसके बाद वो जो पोटैटो है उसका वाटर निकालना है, सेपरेट आउट करना है। तो उसको सेपरेट कैसे करना है, यूजिंग द मसलिन क्लॉथ, ओके, या फिर क्लॉथ, सिंपली क्लॉथ। तो वो पानी आपको लेना है 500 ml और उसमें आपको अगार पाउडर डालना है, ठीक है। अगार पाउडर डालने के बाद उसमें 15 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज डालना है, उसको मिक्सअप कर लेना है, ऑटोक्लेव करना है, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द मीडिया नाउ। इसके अलावा जो दूसरा मीडिया यूज़ किया जाता है दैट इज़ द कॉर्न मील अगार, ओके। द कॉर्न मील अगार जो होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फंगाई सच एज इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिड्स, तो वो जनरली उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द फंगाई इम्परफेक्टी। तो वो टाइप के फंगाई आप यूज़ कर सकते हो। और जो फंगाई वुड पे ग्रो होते हैं, वी कैसे लकड़ी पे ग्रो होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, उनको भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। इसमें जैसे पोटैटो डेक्सट्रोज अगार का क्या साइड इफेक्ट है कि वहाँ पे आप ग्रोथ कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये जो मीडिया है इसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि यहाँ पे हम माइसेलियल ग्रोथ और स्पोरुलेशन ना हो ज़्यादा, इसका आप बैलेंस रख सकते हो इन दिस टाइप ऑफ मीडिया। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से, फिर अगार है, कॉर्न मील है, एंड डिस्टिल वाटर। तो अगार जो है अबाउट 15 to 20 ग्राम्स ऐड करना है। कॉर्न मील यू आर गोइंग टू ऐड 20 ग्राम्स फॉर हाउ मेनी ml ऑफ वाटर, 1000 ml, दैट इज़ 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है। इतना ही कंपोनेंट है। तो सेम जैसे हमने पोटैटो में किया था, यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है कि कॉर्न मील को क्या करना है, 500 ml में डालना है पानी में, डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर यूज़ करना है आपको, ठीक है। उसको बॉईल होने देना है, डिज़ोल्व होने देना है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, उसको ठंडे होने देना है। आफ्टर दैट हमने उसको उसमें अगार डालना है। अगार डालने के बाद जो है हमने उसको ऑटोक्लेव करना है, ठीक है। इतना ही उसका प्रोसीजर है। तीसरा मीडिया आप यूज़ कर सकते हो वाटर अगार। अब वाटर अगार मतलब क्या, इसमें 2 ही कंपोनेंट, एक तो वाटर, एक तो अगार। तो यहाँ पे आप कौन से ग्रो कर सकते हो, ऐसे फंगाई जो सेलुलोज डिस्ट्रॉइंग फंगाई है, जो प्लांट में डिसीज, जनरली क्या होता है सेलुलोज इतना हार्ड होता है कि कोई फंगाई उसको जनरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, इवन हम भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन कोई ऐसे फंगाई होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, पूरा जंगल ये लोग ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे फंगाई जो होते हैं वो सेलुलोज खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंगाई को हम ग्रो कर सकते हैं जो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करके अपने आप ग्रो होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम वाटर अगार यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बस अगार 20 ग्राम और डिस्टिल वाटर 1000 ग्राम डालना है, ठीक है। और उस मीडिया को ऑटोक्लेव करना है, बस इतना ही आपको करना है। दैट इज़ नोन एज दी वाटर अगार मीडियम। इसके अलावा जो 4th मीडियम जो यूज़ किया जाता है, इट इज़ द माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार मीडियम। तो इसमें आप क्या करोगे कि ये जो मीडिया है माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार मीडिया, इट इज़ यूज फॉर द फंगाई कल्चरिंग। जो फंगाई आपने आइसोलेट किए, एक तो सॉइल में से या एक तो वुड में से, ठीक है। तो वो दोनों फंगाई आप कहाँ पे ग्रो कर सकते हो, ऑन दी माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार। तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें पेप्टोन नहीं होता है। तो एस्कोमाइकोटा के जो क्लास के फंगाई होते हैं उनको आप इजीली इस पे ग्रो कर सकते हो, जहाँ पे स्पोरुलेशन जो है इनहिबिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पेप्टोन, ठीक है। एस्कोमाइकोटा के जो फंगाई होते हैं उनका स्पोरुलेशन इनहिबिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पेप्टोन, दैट्स वाई पेप्टोन इनमें नहीं होता है इस मीडिया में। इसकी वजह से आप एस्कोमाइसिड्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट है माल्ट जो आप लेते हो 20 ग्राम्स, अगार अबाउट 20 ग्राम्स, ग्लूकोज अबाउट 20 ग्राम्स, डिस्टिल वाटर
1000 ml, हम 1 लीटर बनाने वाले हैं तो इसमें 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, ठीक है। सुक्रोज अराउंड 200 ग्राम। और अगर आपको जो अगार बनाना है तो उसमें क्या करेंगे आप, यही इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ साथ सुक्रोज और अगार भी डाल सकते हो, ठीक है। विदाउट अगार भी आप इसको बना सकते हो, बस उसमें सुक्रोज ऐड करना। और ये जो आपको आयता डिब्बा मिलेगा अगर इसका, इस मीडियम का अगर आपको रेडीमेड डिब्बा मिलेगा तो अच्छा है, तो उसमें बस आपको सुक्रोज ऐड करना है, ठीक है। देन जो मीडिया यूज़ किया जाता है 5th नंबर का फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फंगाई, इट इज़ सैबोट्स डेस्ट्रोस अगार, ओके। सैबोट्स अगार भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो मीडिया है इट इज़ अ स्टैंडर्ड मीडियम, ठीक है। जनरली जो फंगाई का आप प्रिजर्वेशन करते हो क्लिनिकल लैबोरेटरी में, कल्चरिंग करते हो और फिर उसको प्रिजर्व करके रख देते हो, तो वो प्रिजर्वेशन के लिए जो मीडिया लगता है इट इज़ द सैबोट्स मीडियम, ओके। तो सैबोट्स की कंटेंट क्या है कि ग्लूकोज इसमें डलता है अबाउट 20 ग्राम्स, पेप्टोन डलता है अबाउट 10 ग्राम्स, अगार डलता है अबाउट 20 ग्राम्स, डिस्टिल्ड वाटर डलता है अबाउट 1000 ml, ओके। देन वन मोर टाइप ऑफ द मीडियम दैट इज़ द ज़ैपिक डॉक्स अगार मीडियम, ओके। CZ मीडियम उसको कहा जाता है। ये भी जो मीडिया है इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन एंड कल्चरिंग, ओके, फंगाई का। लेकिन फंगाई कौन से, सैप्रोफाइटिक। Saprophytic meaning what, that they grow on the dead organic matter, okay. तो for that purpose when we want to cultivate the saprophytic type of the fungi, जो dead matter पे grow होने वाले ऐसे fungi को अगर आपको cultivate करना है, we can use the CZ मीडियम, ओके। तो इट हैज़ द कंपोनेंट सच दैट सुक्रोज होता है उसमें 30 ग्राम्स, सोडियम नाइट्रेट होता है 3 ग्राम्स, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम्स, पोटेशियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, आयरन सल्फेट 0.1 ग्राम, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो सकता है 1 ग्राम, अगार 20 ग्राम फॉर द 1000। अब ये सब मीडिया, ये सब कंपोनेंट्स आपको 1000 ml में डालने, ठीक है। तो ये जो मीडिया है CZ मीडिया, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हाट, फंगाई, एंड पर्टिकुलरली अगर आपको सैप्रोफाइटिक फंगाई ग्रो करने हैं तब। तो इसमें से आप कोई भी 2 मीडिया याद रख लो जो आपको जनरली आप यूज़ कर सकते हो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हाट, फंगाई। सो दैट्स अबाउट इट। ये है सम मीडिया दैट आर नीडेड और दैट आर यूज्ड rapidly for the rapid growth of the what, fungi, okay, or for the cultivation of fungi. So as the fungi don't need some kind of advanced condition or some kind of the complex condition for the growth, so it is very easy to cultivate them, and for that thing we use different kinds of media. So I hope you have understood my lecture. Kindly do comment your attendance in the comment section. Thank you.